So back to cricket now. Remind you, Aryan won the toss and they decided to field first. To openers on the ground, Arbaz Patel with Arkam. Both are very good player. Arkam is the stylish batsman and Arbaz one of the key player of Matini sport. Mehboob Garvi, Mehboob Gauri joined with us. The famous name in Rajasthan Royal. But the lowest score goes to Caribbean name. In this tournament, best bowling figure, Sagar Bhair. First ball. This time played away from his body, uppish stroke indeed, but just overhead of the deep mid off, and Arbaz gets two. So Arkam gets two, Arkam off the mark with two, and Matini Sports 2 for no wicket. Not a very good stroke played by Arkam. This time tried to chop dash ball, beats him outside the off stump. Arkam is the lone man who played a superb knock in previous year in late Rajiv Gandhi Trophy, a 70 runs against Dhanesh 11. Is one of the complete technique batsmen. Here goes Altamash. This time beautifully played. One bounce, cross the boundary for 4. What a shot. Lovely looking drive. He picks on the off volley. Max room in his style of Mike Hussey. One bounce cross the long off, finds for 4. So Arkam off the mark. Arkam moves up to 6 and Matini Sports 6 for no wicket. Losing a toss batting first here. Altamash. Left arm round wicket to Arkam. Goes to Arkam, fine delivery, up to him, edge of the bat and rose to wicket keeper, no runs. Next match, another big match between Maratha Punjab and Bhiwandi Tigers, Bilasar Fam team and Yogesh Bhuir Fam team. This time short and wide, tried to cut that ball, white signal from umpire. He bows in Dusra Mohalla, 1 to score now, 7 for no wicket. Another bad delivery, white signal from umpire. Runs coming in form of extra for Matini Sports Mapoli. 8 without loss. Altamash. Boss tried to reverse sweep. Beats him outside the off stump. Not a right choice from Arkam. This time played beautifully. What a shot. One bounce cross the backward square leg fence for 4. He is the key player and played a superb stroke indeed. Look at that. Oh, ho, ho. What a shot. Delightful stroke. Sweep away in his style of Morgan England. One bounce cross the fence for 4. That marks end of the first over. 12 without loss. एक ओवर की समाप्ति, मतीनी स्पोर्ट 12 रन बिना किसी विकेट के. मापोली की 2 टीमें आज अपने मुकाबले हार गई, पीजी स्पोर्ट और वकी स्पोर्ट मापोली. तीसरी टीम इस वक्त तो लोहा लेती भी.
गेंदबाजी के लिए अब दूर वाले छोर से हाजी समद सेठ स्टैंड की जानिब से बुलाया गया है इरशाद को। इरशाद फील्ड की जमावट, कोई स्लिप नहीं, कोई गली नहीं, एक शॉर्ट टर्मेन, एक पॉइंट, एक कवर है, एक मिड ऑफ है, जबकि मिड ऑन को थोड़ा सा अंपायर ने कहा है कि गाइडलाइंस के अंदर आ रहा है। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया, निकल के मारा, और ये देखिए कैच उन्होंने पकड़ा या कैच को आकर गेंद ने आकर उनको पकड़ा, ये रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। बहरहाल बहुत बड़ी विकेट, और अरबाज पटेल फिर शून्य का चश्मा पहनकर आउट होते हुए। खराब शॉट खेला था, कहीं भी गेंद को पड़ा नहीं था वहां पर। और ये देखिए पहली मर्तबा तो कोशिश, लेकिन दूसरी मर्तबा अनुमान, और इस तरह के कैच लिए नहीं जाते, हाथों में चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। बैठ गया वहां पर खिलाड़ी के हाथ में कैच, सेफ थे वहां पर, लेकिन बड़ा झटका लगता हुआ मतीन स्पोर्ट्स मापोली को। अरबाज पटेल फिर से निराश करते हुए नए बैट्समैन आसिफ चिमनाट आए हैं। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ट्राइप इनफील्ड के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। बहुत ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं अरकम, बहुत अच्छा फॉलो थ्रू है और अच्छे शॉट्स खेलते हैं वो। बिल्कुल गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अरकम। हुसैन राजस्थानी ने कहा है कि टूर्नामेंट लाजवाब है। इस मरतबा फ्लिक करते हुए पैरों के सामने आउटफील्ड में 1 रन। कमेंट्री पैनल के लिए भी उन्होंने सराहना की है। आसिफ चिमनाट, देखना है कि जियो कार्ड उनके मिलता है, लेकिन जियो की तरह दिल भर के लूटते रन है या नहीं। इरशाद, ओ बढ़िया गेंद, आगे रखा था, टर्न भी मिला था, बीट कर दिया आसिफ चिमनाट को। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, छोटी गेंद हुक कर दिया है, गैप में गेंद जा रही है, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। शुमाइल सूसे ने आसिफ चिमनाट को इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है। ये देखिए आसिफ चिमनाट, ये भी गजब के खिलाड़ी हैं। एक बार इनकी आंखें जम गई तो बहुत ही कठिनाइयों में ला सकते हैं। पप्पू कास्कर की तरफ से आसिफ चिमनाट के लिए ऑल द बेस्ट हैं। फिर से हुक और फिर से गेंद उसी दिशा में 4 रन। लगातार छोटी गेंदें और उसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं आसिफ चिमनाट। मैंडेटरी पावर प्ले में मतीन स्पोर्ट मापोली की गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं और कुल 25 रन हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत बढ़िया शुरुआत। आठ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ चिमनाट, लेकिन बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 चौकों की मदद से 3 डॉट गेंदे भी खेलिए, लेकिन कुल मिलाकर अरकम इस वक्त खेल रहे हैं 15 पर। अरबाज पटेल आज अपना खाता नहीं खोल पाए। अगले मुकाबले के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा विलासार फैम टीम
भिवंडी टाइगर्स के कैप्टन और योगेश भोईर फैम टीम मराठा पंजाब के कैप्टन। अजय घरत मुझसे जुड़ते हुए, फिर अरकम ने अजय घरत अपने क्लास को शो किया है। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक्स खेले इन फ्रंट ऑफ द विकेट। गेंदबाजी के लिए रफी अहमद को बुलाया गया है। हुक कर दिया और गेंद जाएंगी मैदान के बाहर 6 रन। अब ये जो बैट्समैन है, गेंदबाज रफी आए, इनको तो कोई भी आए, किशोर आए या मुकेश आए, वो तो अपनी धुन में बल्लेबाजी कर रहे हैं। रफी की पहली गेंद को उन्होंने भेज दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। यानी कि आप कह रहे हैं कि संगीत तो उनका ही रहेगा। यस, ये तो बल्ले का संगीत, एक से एक तारों को छेड़ रहे हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट। आपको तो पता होगा उस क्लास बॉलिंग के सामने उन्होंने 70 रन बनाए थे, जब धनेश के तमाम गेंदबाज, उसमें मनोज भुईर, भावेश पवार सभी भी टूट पड़े थे। 31 रन 1 विकेट गंवाने के बाद कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को और गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए। गजब की बल्लेबाजी, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे थे, अपने आप को रोका ही नहीं उन्होंने, लॉन्ग ऑन को क्लियर किया 6 रन। और ये देखिए कप्तान थे वहां पर, कैप्टन थे, सैफ थे। ये देखिए सैफ को वहां उछलना चाहिए था, वो नहीं उछले, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में 12वें खिलाड़ी नवाज उछली। एक्साइटमेंट, बहुत सारा एक्साइटमेंट है इस टूर्नामेंट में। ऐसा लग रहा है कि मतीन स्पोर्ट्स आगे जाने की तैयारी में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है हर मैच में। इस मर्तबा स्वीप किया, बढ़िया फील्डिंग, गिरते पड़ते गेंद को रोका, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। अड़तीस रन 1 विकेट के नुकसान पर आक्रामक रवैया धारण कर लिया है अरकम ने। हालांकि आसिफ चिमनाट भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अरकम तो मानो अपने बाजुओं को खोल चुके हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 38 हो चुका है स्कोर मतीन स्पोर्ट्स का। फुल टॉस गेंद, नो बॉल, लेकिन एलिवेशन नहीं बना था। खेलना चाहते थे मिड विकेट पे आसिफ चिमनाट, गेंद चलेगी वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। बीमर गेंद थी, फ्री हिट, इसकी कमी रह गई थी। ऐसी स्थिति में तो इसको बीमारी कहना चाहिए। तेज गति से रन बनते हुए एक बड़ा ओवर साबित होता हुआ रफी का। इस मर्तबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, खूबसूरत शॉट, 6 रन। इससे अच्छा शॉट आंखों में समा नहीं सकता है। डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से क्या जबरदस्त फॉलो थ्रू देखने को मिल रहा है, क्लास झलकता हुआ बल्लेबाजी में। बिल्कुल, और वो भी क्लास कौन सा। इस शॉट को देखिए, अगर आप इसको 10 मरतबा देखेंगे तो 11वीं मरतबा आपका दिल चाहेगा। जाजिबुल नजर, नजरों में जज्ब होने वाला स्ट्रोक, डाउन दी विकेट खेला, 6 रन। रिवर्स मॉर्गन के अंदाज में, लेकिन उसको भी नहीं पकड़ पाए, जाने का रास्ता दिया, 4 रन। साधारण क्षेत्र रक्षण, कुछ भी सही नहीं हो रहा है इस समय आर्यन स्पोर्ट्स के लिए। अब रावजी नगर कल्याण रोड की ये जो टीम है, इनके गेंदबाजों को किसी तरह का कोई भी भाव नहीं दे रहे हैं। अरकम 50 रन हो चुके हैं और अरकम कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर कदमों का इस्तेमाल, स्ट्रोक को चेक किया, कलाइयों का उपयोग, टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन बना। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रनों पे पहुंचा है। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 39 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अरकम। व्हाट अ इनिंग ही प्लेड,
वाकई में एंडलेस इनिंग यहाँ पे अब तक नजर आ रही है अरकम की। कुल स्कोर 51 रन हो चुका है और 39 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अरकम। अगली 3 ओवर में क्या होता है ये आइए सुनते हैं अजय गरज से। शुक्रिया सिद्दीक भावे। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मतीन स्पोर्ट्स की लाजवाब शुरुआत, 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद। शानदार बैटिंग कर रहे हैं इस समय बायत के बैट्समैन अरकम। आसिफ भी अच्छा साथ निभाते हुए उनका 9 पर खेल रहे हैं। 39 पर अरकम, अर्धशतक जड़ने का मौका है उनके पास। नेवर की पहली गेंद, नो बॉल का इशारा और उसको भेज दिया मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। देखना है किस चीज के लिए अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 3 खिलाड़ी थे। अंपायरिंग तो बहुत ही लाजवाब रही है इस टूर्नामेंट में, ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि इस सत्र में जो अंपायरिंग हम देख रहे हैं भिवंडी टेनिस क्रिकेट में लाजवाब। फ्री हिट का इशारा, 45 पर पहुंच चुके हैं अरकम और इस गेंद पर तो मौका है उनके पास अर्धशतक पूरा करने का। स्कोर 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अल्तमश की गेंद, लॉफ्टेड शॉट खेला है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट खिलाड़ी तैनात है। इस बार केवल 1 रन। अरकम की बल्लेबाजी हम देखें तो उनके पास काफी क्षमता है, टैलेंट काफी है, उन्होंने आज दिखा दिया है। कंसिस्टेंसी की कहीं ना कहीं कमी रही है उनकी बल्लेबाजी में, निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। आज जो पारी उन्होंने खेली है देखने लायक, एक लंबी पारी, मात्र 4 रन दूर है अपने अर्धशतक से। आसिफ काफी अनुभवी है। इस बार बैट का फेस खोलते हुए खेलने की कोशिश, सिंगल शायद निकालना चाह रहे थे, स्ट्राइक देना चाह रहे अपने पार्टनर को जो कि अर्धशतक के काफी नजदीक है। फुल टॉस भेज दिया उसको स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। अगर टेढ़ा हो तो खाने में तो वही मजा देगा। कहाँ छोड़ने वाले थे आसिफ चिमनाट, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। कितने पे खेल रहे हैं आसिफ चिमनाट? 15 पे इस मरतबा। और आपको तो पता होगा अभी अभी उनकी शादी खाना आबादी हो गई है, और वो जो कहते हैं कि दुआएं रंग लाती। जी हाँ, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 पर बैटिंग करते हुए रिवर्स खेलने की कोशिश, संपर्क नहीं बना पाए। एक और डॉट बॉल। लेकिन एक सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि फरहान कोतकर जिस टीम में रहे वहाँ पे अनुभव की तो कमी नहीं रह सकती। ये जरूर आदेश दिया था उन्होंने, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आपको सिर्फ आक्रमण करना है, वॉरियर बनना है, सफों को तोड़ना है, गेंदबाजी को तोड़ना है। फ्लिक करने की कोशिश, आउट, लेग बिफोर विकेट। ये बिल्कुल विकेटों के सामने अंपायर के लिए इस तरह के डिसीजन सिर्फ उंगली उठाने के लिए रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत गेंद, खूबसूरत वापसी की वहाँ पर
नए बैट्समैन बिग बर्ड फरहान कोतकर बल्लेबाजी को जा रहे हैं। ये खिलाड़ी का एक ऐसा इतिहास रहा था कि ये जब अपने फॉर्म में रहा करते थे गेंदबाजी और फील्डिंग और बॉलिंग के, तो सिर्फ फरहान कोतकर को देखने कहीं उनके फैंस आ जाते थे। बड़े खिलाड़ी है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 65 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मतीन स्पोर्ट्स महापोली। महापोली की 2 टीमें आज टूर्नामेंट से बाहर हुई है, लेकिन ये टीम अच्छा खेल पेश करती हुई मजबूत स्थिति में है इस समय मतीन स्पोर्ट्स। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। मयूर पाटिल हमारे बीच में आते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। इसके बाद होने वाला मैच बड़ा मैच है, देखना मत भूलिएगा। मराठा पंजाब बनाम भिवंडी टाइगर्स। अच्छी गेंद वापसी करते हुए गेंदबाज मुफस्सल गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। उनका ये पहला ओवर है। गेंद के नीचे खिलाड़ी और इसके साथ ही बैट्समैन आउट। एक आउट वेयर कम, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द बैट लगी और 46 रन बनाने के बाद 46 रन बनाने के बाद 46 रन बनाने के बाद आउट वेयर कम, कहीं ना कहीं अर्धशतक का जो मौका था वो गवा दिया। अब तक 3 अर्धशतक किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख लगा चुके हैं महिंद्रा के। 2 अर्धशतक काले रत्न नंदन पाटिल लगा चुके हैं। ये ग्राउंड पे नंदन पाटिल का तो अर्धशतक मानो रखा हुआ है। जी हाँ, बहुत ही लकी ग्राउंड है नंदन पाटिल के लिए। कल उन्होंने 50 पूरी की थी अपनी। मुफस्सल फरहान के लिए छोटी बैकलिप का उपयोग ऑफ साइड में पुश किया है। 1 रन के लिए अपना खाता खोलते हुए फरहान खोदकर। इसके बाद भिवंडी टाइगर्स और एमपी और आखिर में हंसिका और धनेश। कल ठीक 9 बजे विकी स्पोर्ट चाविंद्रा और महेंद्रा स्पोर्ट, बालाजी स्पोर्ट और उस्मानिया 10 बजे। इस बीच एक गेंद बहुत बार किया था वाइट। तीसरा मैच कल रहेगा यूतिका और विक्टोरियन के बीच में। कल विक्टोरियन के सामने यूतिका। अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में मुफस्सल। हालांकि 2 वाइड गेंदें की है, लेकिन अभी तक बल्लेबाजों को उन्होंने आजादी नहीं दी है। थोड़ी सी शॉट थी, टॉप एज और आउट। असलम पटेल ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है मापोली से और ऑल इज वेल चलता हुआ। कई आउट हुए, खाता नहीं खोल पाए। पुल करने की कोशिश की थी, ऊपर लगी बल्ले के। नए बैट्समैन खिजर बल्लेबाजी को जा रहे हैं। वकास हैं, सॉरी, खिजर वनटी में खेले थे। जी हाँ, उनके भाई अच्छा खेले। 18 रन बनाए थे आज सुबह के मैच में खीजर ने। इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। इस मरतबा फ्लिक कर दिया, बैकलिफ को नीचा रखा था डीप स्क्वायर लेग पर। 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं पूरा करते हुए। अच्छा कॉल। अजय गलत बात यह है कि बीसीसी के भी कई खिलाड़ी, पूरी टीम कहीं ना कहीं खेल रही है, वही काम तलौली के खिलाड़ी भी अब कर रहे हैं। जी हाँ, स्टार 11 तलौली के भी और पावर ऑफ तलौली के भी काफी खिलाड़ी खेल रहे हैं इस सत्र में पड़गांव और उसके परिसर के भिवंडी सिटी क्रिकेट में। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवर समाप्त हुआ है 5वां।
Yes, I think very good total on the board because 70, one of the tough total in previous match. What a batting from Bholenath Sport and Sagar Bhuir create history. Ever in this season, the best bowling figure goes to Sagar's name. 2 overs, 15 runs and 6 wickets. कमाल की गेंदबाजी की सागर भोईर ने। इस सत्र का सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर भिवंडी सिटी टेनिस क्रिकेट में। इरशाद अटैक पर फिर से आते हुए, शॉट पुल, गेंद हवा में और आउट। अच्छा कैच। ये देखिए, पूरा स्ट्रोक नहीं खेला था, अधूरे मन से पुल किया था। अच्छी पोजीशन में आते हुए कैच लिया फील्डर ने। गिरने वाला 5वां विकेट। चर्चा हो रही थी वकी स्पोर्ट्स महापोली की, 2 बार इस सत्र में ऑल आउट हो चुके हैं और कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है जो पिछले सत्र में वकी स्पोर्ट्स खेली थी वैसे खेल रही है। बायात से राउंड द विकेट इरशाद। आसिफ के पास स्ट्राइक है। आते ही उछाल दिया उन्होंने, फील्डर है लेकिन मौका नहीं। 6 रन।
टॉस होता हुआ छिड़का आहे मयूर ने, लेकिन टेल आता हुआ. थँक्यू सर. टॉस या ठिकाणी जिंकलेला आहे मराठा पंजाब संघाने. प्रतीक, आपला पहिला सामना आहे या स्पर्धेमधला. आयोजन कसं वाटतंय? खूप चांगलं आयोजन केलेलं आहे. नाणेफेक जिंकले, आपण काय करणार? बॅटिंग फर्स्ट. अगोदरच ठरवून आलेले होते की संघामध्ये निर्णय झाला होता नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी घेणार, किंवा आपण परिस्थिती पाहिली या ग्राउंडची, बाउंड्रीज छोट्या करण्यात आलेल्या आहेत. या ग्राउंडची परिस्थिती बघून आम्ही बॅटिंग करणार फर्स्ट. 6 षटकांमध्ये कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 60+. पूर्ण ताकदीनिशी संघ आलेला आहे की काही महत्त्वाचे खेळाडू मिसिंग आहेत? पूर्ण ताकदीने. ये प्रतीक, एक सवाल करना चाहूँगा, क्या वहीं रिकॉग्नाइज पैर रहेंगी जिसने जब भी खेला है अच्छा खेला है, आतिश पाटिल के साथ आप ही रहेंगे मैंडेटरी पावर प्ले में? ऐसा तो नहीं, गेम प्लान किया है, उस हिसाब से खेलेंगे. ऑल द बेस्ट प्रतीक भोईर. मयूर पाटिल, शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा शो किया है और आयोजन भी बहुत अच्छा किया है. टॉस जीतते तो आप क्या करते? फील्डिंग ही करते हैं. और अभी भी आपको क्षेत्र रक्षण करने का मौका दिया गया है विपक्षी टीम द्वारा. क्या लगता है 6 ओवर्स में कहाँ तक रोकने की कोशिश होगी? उनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, हम कम से कम 40-50 अंदर के रोकना चाहेंगे. केतन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपकी टीम के लिए. सुदर्शन ने भी एक अच्छी पारी खेली थी. तो क्या ये दोनों भी खिलाड़ी इस मैच में खेल रहे हैं? जी ज़रूर खेल रहे हैं. ऑल द बेस्ट मयूर पाटिल. सो न्यूज़ फ्रॉम द टॉस, मराठा पंजाब वन द टॉस एंड दे विल बी बैटिंग फर्स्ट. बैक टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू अजय गड़त. मौसीकी में कोई ऐसा गाना है जिसमें बहुत अच्छी उर्दू, मेरे अश्के कमर, रश्क कमर, जहाँ पे लिखा गया है कमर पे रश्क किया है. किसी ने सच कहा है कि नहीं नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होंगी, वो आए चले गए मिले भी नहीं. और ये कौन लोग अंधेरों की बात करते हैं, अभी तो चांद तेरी याद के ढले भी नहीं. वाकई में हमारे अंपायर फैज रईस भी बहुत अदब का ज़ौक रखते हैं. और रश्क कमर, चांद जिस पे रश्क करे. So back to cricket now. Beautiful evening here at the historical Parshuram Tore Stadium, and you are watching Cricket Endless, Deputy Mayor Cup 2017. And welcome everybody wherever you are. Those are watching on YouTube, those are watching on SMP channel, those are watching on DAN, and those are watching on Triple S. Beautiful atmosphere of cricket. Light breeze running over the ground. '84, the target in front of Aryan Sports. Two openers on the ground. Today, PG Sport Mapoli lost their match. Waki Sport Mapoli out of the tournament. But Matin Sport right on top now. Absolutely. Matin Sports, they will be fancy their chances. Good score on the board, 83 runs in 6 overs, 84 runs to get for Aryan Sports. Two openers on the ground. Zafar and Rafi. Is going to be Asif Chimnat. First ball of the match. This time it's hard and high. There is the fielder. Yes, he's out. First wicket has gone for cheaply.
and man out Zafar Podak. Gets off the mark with that boundary. Wasn't very conventional. Was trying to play through the point. Ball traveled behind point for 4. Asif Chimnad. This time leg cutter goes his back foot, try to cuts. Ball is travelling, first bounce to Gali. Fielder is fumbling there and 2-2 score now. His score moves up to 6 for the loss of 1 wicket. Aryan Sport chasing a target of 84. Good change of pace from Asif. Asif is experienced campaigner. Bit of football on that previous ball by the fielder. This time played beautifully over the infield. One bounce crossed the long off boundary for 4. Shot. Juicy half volley clears the front leg and clears the infield as well. One bounce and over the boundary. Asif Sheikh. Asif Bao this time goes his back foot, punched very hard, but with the stroke batsman through for 1. Good running between the wicket. Nice coordination between both batsmen. 1-2 score now. His score moves up to 11 for the loss of 1 wicket. Very good total on the board, but departure of the first wicket of Zafar was caught at deep mid wicket. This time played beautifully and couple of bounces, ball is crossed. Aryan Sports now 15 runs on the board. Have a look at that bit of improvisation from the batsman. Intelligent batting. एक ओवर की समाप्ति 15 रन. कप्तान ने कहा था मुझे अपने ओपिनियन में कि उनके पास बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई जबकि पहले वो गेंद पर विकेट गिरा था, पलट के वार किया है आर्यन स्पोर्ट्स ने. ये हमारे मेहमानों को आप देख रहे हैं. खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए कप्तान आसिफ शेख आए हैं. आवश्यक रन रेट 14 रन प्रति ओवर का था पारी की शुरुआत में. पहले ओवर में 15 रन आ चुके हैं. अब बहुत ही खुशगवार मौसम होता हुआ, हवाएं बह रही है, सूरज आबताब से चमकता हुआ. आसिफ शेख छोटी गेंद बैकफुट पे गए, कट किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट पर, अब जाकर उसको उठाया है. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. अच्छा रिप्लाई यहां पर देते हुए रफी. हालांकि आपिश खेला था
रफी ने, लेकिन गैप में निकाल दिया था। दो चौके जड़ चुके अपनी पारी में अभी तक रफी। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए आसिफ शेख, फिर से रूम दिया, पंच किया इनफील्ड के ऊपर से 4 रन। जिस तरह से बैकफुट पे जाकर पंच किया था, जगह बना के 4 रन। मेरे रश के कमर बार बार बजाया जा रहा है। हम तो कितनों को मैं जब ही कहते, आप है इसलिए नहीं कहते। और चांद होता जो मेरा हम सफर, चांद का तुझको हम नशी कहते। कदमों का इस्तेमाल, हुक, एबी डिविलियर्स का अंदाज, 6 रन। क्योंकि उन्होंने 26 रन दिए थे, वो उसूल रहे हैं। ये तो एबी का अंदाज था, फ्रंट फुट हुक। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, आगे निकले थे क्रीज छोड़कर बैट्समैन रफी। ये देखते हुए उनको फॉलो करने की कोशिश की थी बाउंसर के साथ आसिफ ने, लेकिन उसको भी पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल फरहान कोतकर चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों आसिफ हैं, उनका हाल बुरा है। हल्ला बोल दिया है मतीन स्पोर्ट्स की गेंदबाजी पर रफी ने। इसे कहते हैं पॉजिटिव रिप्लाई। ईंट का जवाब पत्थर से अभी तक दे रही है आर्यन स्पोर्ट। कप्तान ने मुझे कहा था कि उनके पास बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, लग भी रही है तगड़ी बल्लेबाजी। फिर से शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए, खिलाड़ी पहले ही गिरते हुए वहां पर वकास। गेंद पीछे गई है और 2 रन पूरे के बैट्समैन ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पे पहुंचा है, 29। बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए रफी। ये ओवर भी महंगा साबित होता हुआ। 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक। 29 रन हो चुके हैं 1 विकेट कमाने के बाद। अगला मुकाबला मराठा पंजाब ने टॉस जीता है। एक और गेंद जाएगी मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। आंख तो बैट्समैन लड़ा रहे हैं गेंदबाज से, और गेंद टकरा रही है बल्ले पर, बाउंड्री के बाहर नजर आ रही है। बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बल्लेबाजी हो रही है। बहुत जबरदस्त रिप्लाई हम देख रहे हैं आर्यन स्पोर्ट्स का। एक और छोटी गेंद, फिर से पुल किया 4 रनों के लिए। स्क्वायर एक बाउंड्री के बाहर। इस टूर्नामेंट में कई 20+ नजर आए, लेकिन रफी ने अपना गुस्सा पूरा उतार दिया। 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 37 रन। मैंडेटरी पावर में धो डाला गेंदबाजों को। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी, और उनका जो विकेट है काफी महत्वपूर्ण रहेगा यहां से। और बल्लेबाजी भी क्या हुई है, मानो गेंदबाज के आंखों में आंखें डालकर बल्लेबाजी। जी हाँ, ताबड़तोड़ और कमरतोड़ बल्लेबाजी। एक से बढ़कर एक स्ट्रोक रफी के बल्ले से अभी तक देखने को मिले हैं। कुल मिलाकर 5 चौके जड़ चुके हैं और 1 छक्का।
ये तमाम कटआउट्स बताए जा रहे हैं। 37 रन 1 विकेट कमाने के बाद। कितने रन चाहिए साहिबा मोमिन बची हुई 4 ओवर में? 47 रन। तीसरे गेंदबाज बुलाए गए हैं सईम। आवश्यक रन रेट नीचे गिरता हुआ 11.75 रन प्रति ओवर का अब यहां से। फरहान कोतकर फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग समय के लिए। अगला मुकाबला जहां पर इस साल आतिश पाटिल ने भी इतिहास रचा, मापोली क्रिकेट धमाका में 6 गेंदों में 6 चौके लगाए। सईम ये तो पहली गेंद पे सहमे हुए नजर आए और ये देखिए अंपायर का क्या इशारा आता है। देखना चाहेंगे दोनों अंपायर्स क्या वहां पे डिसीजन देते हैं। गेंद रोकते टाइम क्या वो टकरा गए थे बाउंड्री से? रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, जबकि तीसरे अंपायर यहां पर हसन मोमिन बैठे हुए हैं। मैच काफी क्लोज है। पिछले गेंद का रिप्ले बताया जाए। दो रन के साथ 39 पे पहुंचा है स्कोर। सईम फुल टॉस गेंद फिर से खेल दिया और नो बॉल। क्या कहेंगे अजय करत? ये सईम भी तो सहमे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दोनों भी गेंदें फुल टॉस। इस बार तो कमर से भी ऊपर थी। नो बॉल घोषित किया अंपायर ने। अब फ्री हिट है। कठिनाइयां लगातार बढ़ती हुई मतीन स्पोर्ट्स की। वंडर किड्स और वंडर बोटिक और वंडर स्पोर्ट्स के करता धरता जब्बार शेख ने आर्यन स्पोर्ट्स को भी ऑल द बेस्ट कहा है और रफी को स्पेशली ऑल द बेस्ट, जो टूट पड़े हैं इस वक्त गेंदबाजी पर। फ्री हिट है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 41 रन। इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ पे। 1 रन बना। दूसरे के लिए जा रहे हैं बैट्समैन और इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 43 रन। पहली गेंद पे पहला विकेट, उसके बाद जब दबाव बना है तो गेंदबाज उससे उबर नहीं पा रहे। काउंटर अटैक देखने को मिला है, खासतौर पर रफी के बल्ले से। सैफ भी अच्छा खेल रहे हैं। कोई जोखिम नहीं था पिछले स्ट्रोक में, फ्री हिट था। सेम फुल टॉस गेंद को खेल दिया है गैप के अंदर। पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए। फील्डिंग सिर्फ 1 रन। खराब गेंदबाजी हो रही है मतीन स्पोर्ट्स की तरफ से और स्कोर 48 पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। 48 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत अच्छी गेंद बीट किया। हालांकि इस सीजन के हाईएस्ट चेसिंग का रिकॉर्ड धनेश के नाम है। 99 रन चेस किए उन्होंने मापोली क्रिकेट धमाका में महिंद्रा के सामने सेमीफाइनल में। पहली डॉट गेंद थी 3 ओवर में।
अच्छी गेंद आगे रखा था, बैकलीफ को नीचा किया, रन के लिए भाग चुके हैं, रॉन्ग एंड थ्रो, रन पूरा। तो 3 ओवर की समाप्ति और कुल 49 रन बने और 9 विकेटें बाकी है। अजय गरत, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुकाबला अगर जीत गई वहां पर आर्यन स्पोर्ट्स, तो वाकई में इस स्पर्धा का सबसे अच्छा चेसिंग रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। दोनों टीमों को हम तुलनात्मक स्तर पर देखें, 3 ओवर के बाद 51 रन बने थे मतीन स्पोर्ट्स के और जवाब में 49 रन बने। दोनों भी टीमों का एक एक विकेट गिरा है, तो बहुत अच्छा जवाब यहाँ पर मतीन स्पोर्ट्स को दिया हुआ है आर्यन स्पोर्ट्स ने। ये कमेंट्री बॉक्स का दृश्य है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये बताइए कि अंपायर से क्या पूछकर पानी ली जाया गया है। अंपायर जो निर्णय देंगे वो अंतिम रहेगा, प्लीज। हालांकि आर्यन स्पोर्ट को समझना चाहिए, आप बहुत ही प्रोफेशनल टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। अंपायर से बताते कमेटी पूछना चाह रही है कि जो खिलाड़ी पानी लेकर आया था वो आपकी इजाजत से आया था। 2 रन का पेनल्टी आर्यन स्पोर्ट्स को। अब ये 2 रन कहीं महंगे ना पड़ जाए। अब जो 84 का टारगेट था वो 86 का हो चुका है। एक एक रन कीमती है। वैसे भी भिवंडी टेनिस क्रिकेट हाई क्वालिटी टेनिस क्रिकेट है, प्रोफेशनल अप्रोच आपका होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। नवाज भूरे और तौफीक भूरे ने ऑल द बेस्ट कहा है मापोली से मतीन स्पोर्ट्स को। ओवर की शुरुआत डाउन द ग्राउंड, बहुत बढ़िया शॉट, फील्डर पहुंचे जरूर है, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। अच्छी दौड़, सोच अच्छी थी वहां पर रफी की, उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया था दूसरे रन के लिए। दिशाहीन थ्रो पहुंचा था, 2 रन पूरे और इसके साथ ही 50 का आंकड़ा पार करते हुए आर्यन स्पोर्ट्स 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। समय भी काफी लिया जा रहा है, समय का भी ख्याल रखना होगा मतीन स्पोर्ट्स को। इस बार उछाल अच्छा था लेकिन दिशा सही नहीं, वाइड गेंद इद्रिस द्वारा। और अगर हम गेंदबाजी देखते हैं तो शर्त लगी, आसिफ चिमनाट ने 15 दे डाले, कहां पीछे रहने वाले थे आसिफ शेख, 22 दे डाले। कौन बनाती हुई गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, पीछा कर रहे हैं खिलाड़ी, आउटफील्ड दिन मापोली के लिए अच्छा ही नहीं है। ये तीसरी मापोली की टीम है जो कठिनाइयों में 2 टीमें हार चुकी है, पीजी स्पोर्ट और वकी स्पोर्ट। ये देखिए, नजाकत ज्यादा और ताकत कम, दिलकश स्ट्रोक, बैकआउट ऑफ द पॉइंट, 4 रन। गेंद का हालांकि पीछा किया था, पहुंचना पड़ा था बैट्समैन को, काफी दूर से खेले थे, लेट कट, लेकिन कमाल का शॉट। इस बार ड्राइव लगाने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा खाते हुए। डॉट बॉल्स ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं इस पारी में, ये मात्र दूसरी डॉट बॉल, जबकि पारी का चौथा ओवर चल रहा है। स्कोर 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदों में 30 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए आर्यन स्पोर्ट्स को। कदमों का सहारा लिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव किया है, स्वीपर मौजूद है ऑफसाइड में, केवल 1 रन। बाउंड्रीज बचाने की बहुत बड़ी चुनौती अब गेंदबाजों के सामने। कोई भी गेंदबाज प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पाया अभी तक।
पटकी हुई गेंद, जाने दिया उसको, वाइड का इशारा। बहुत दिनों के बाद हमारे बीच में गजा पहुंचे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। गजा नहीं तो मजा नहीं, लेकिन कई सालों से हम बिना गजा के भी मजा देख रहे हैं, लेकिन अब गजा आ गए तो मजा बढ़ जाएगा। जी हाँ, हंसिका भी तो लौट रही है। आज का आखिरी मुकाबला हंसिका स्पोर्ट्स और धनुष 11 के बीच में होगा। दो वाइड गेंदें इस ओवर में अभी तक देखने को मिली है। बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश हो रही है इद्रिस की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट हाजी समझ से टेंट से आगे निकले इस बार। बढ़िया गेंद, पहुंच नहीं पाए पूरी तरह से। बल्ला जरूर चलाया था रफी ने, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। डॉट बॉल से जरूर दबाव बन सकता है बल्लेबाजों पर। वो देखिए, रफी दोबारा पानी मंगा रहे। एक पानी ने 2 रन का पेनल्टी दे डाला। पुलर लेंथ, पैरों के सामने से ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन पर फरहान खोदकर केवल 1 रन। अब जाकर ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर के बाद 59, 1 विकेट के नुकसान पर। रफी, आपको अंपायर से परमिशन लेना है हर बात का। दो ओवर का खेल बचा है इस मैच में। काफी रोमांच अभी भी बाकी है। 27 रनों की आस है और जरूरत आर्यन स्पोर्ट्स को मैच जीतने के लिए। मेरे ख्याल से रिटायर्ड होके आ रहे हैं रफी। यस, 41 रन बनाए उन्होंने, और देखना है क्या कुछ हो रहा है वहां पे। डिस्कशन हो रहा है, शायद फैज बता रहे हैं कि एक ये भी हो सकता है कि दोबारा वो बल्लेबाजी को नहीं आएंगे। एक ये सवाल हो रहा होगा। यस, वही कहा है कि दोबारा बल्लेबाजी को नहीं आ सकते हो, क्योंकि फैज रईस काफी अनुभवी है। रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की, उनको बिग हैंड दिए जा रहे हैं। 41 रन बनाने के बाद शायद उनकी कोनी के अंदर किसी तरह का खिंचाव महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा धक्का है। रिटायर्ड आउट हुए हैं, क्योंकि वो इसके बाद इस मैच में दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं जाएंगे। 41 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। स्कोर इस समय 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बारह गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। ये प्लेयर्स पेविलियन का नजारा। वहां पे राजू काफी खुश नजर आ रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं 2 ओवर के लिए मतिन स्पोर्ट मापोली। एक बात है अजय गरत, भिवंडी का जो टेनिस क्रिकेट है ना, इसमें विकेट कीपर का अमल दखल ज्यादा रहा है, टीम कौन सी भी रहो। जी हाँ, विकेट कीपर लगातार फील्डर्स को यहां से वहां करते रहते हैं। अभी भी देखा जाए तो मतीन स्पोर्ट्स के पास रन्स है बचाने के लिए, और अच्छा मौका उनके लिए ये भी है कि अब नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं सलमान। 41 रन बनाने के बाद रिटायर्ड आउट हुए। वंजारपाटी इलाकों में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। डैन चैनल से रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज को पहुंचाए। नेवर की पहली गेंद उछाल दिया, डाउन द ग्राउंड, 6 रन। हाफ वाली सीधे बल्ले से उछाल दिया था, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक। फील्डर थे बाउंड्री पर, लेकिन उनके पास मौका नहीं। दर्शकों के बीच में जाकर गिरती हुई गेंद 6 रनों के लिए। अब 11 गेंदों में 21 रन चाहिए। बेहतरीन रन चेज
आर्यन स्पोर्ट्स की ओर से। सईम की अगली गेंद, एक और अच्छा ड्राइव, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर। दूसरे की कोशिश, मौका बन सकता था रन आउट का, लेकिन उसको भुना नहीं सके गेंदबाज। नाम तो सही में उनका, लेकिन सहमे हुए हैं जिस तरह उन्होंने कलेक्ट करना चाहता उस थ्रो को। पहले ओवर में उन्होंने 12 रन दिए थे, आखिरी 3 गेंदें बहुत अच्छी की थी। उसको देखते हुए ही कैप्टन ने शायद उनको दूसरा ओवर दिया है। अब 10 में 19। फुल टॉस, स्वंग कर दिया उसको, फील्डर बाउंड्री पर, अच्छा कैच। अच्छा कैच लिया, सीमा रेखा के नजदीक फील्डर ने 8 रन बनाकर आउट हुए सलमान। चोटग्रस्त होना थोड़ा महंगा पड़ता हुआ है यहाँ पर आर्यन स्पोर्ट्स को, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान सैफ। 9 गेंदों में अब 19 रनों की दरकार आर्यन स्पोर्ट्स को मैच जीतने के लिए। सईम अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए। लास्ट ऑफिशियल वार्निंग मतीन स्पोर्ट्स को। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, मिस टाइम शॉट था, दूसरे के लिए जरूर जाना चाहेंगे। गेंद का थोड़ा सा इंतजार करते रह गए लॉन्ग ऑफ के फील्डर। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। कैप्टन सैफ एक अच्छी पारी खेल रहे अपने टीम के लिए, देखना है फिनिशर बन पाते या नहीं। स्कोर 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा शॉट, ये जरूर बाहर है। 6 रन। स्ट्रोक, ये देखिए गेंद को हाफ वॉली पे लिया, गेंद जा रही है और स्टैंड में जाती हुई 6 रन। कप्तान इनिंग खेल रहे हैं वहां पर सैफ। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, 1 टू गो। और अगर इस स्कोर को चेस करते हैं तो इस सीजन का सेकंड हाईएस्ट स्कोर चेसिंग रहेगा। धनेश ने जिस तरह 99 रन चेस किए थे। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज, फील्डर है वहां पर, अच्छा कैच, लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं है। ज्यादा आगे रखा था, पैरों में गेंद को रखा था और लॉन्ग ऑफ पे आउट हुए। फिनिशर तो नहीं बने, लेकिन बहुत बढ़िया बारी खेली कप्तान ने। 23 रन बनाए आउट होने से पहले। अब साहिबा ये बताइए कि इक्वेशन क्या है मैच का, कितनी गेंदों में कितने रन चाहिए? 1 ओवर में 11 रन। अभी भी मैच में जान बाकी है। जी हाँ, बहुत कुछ बाकी है इस मैच में अभी भी।
सेट बैट्समैन आउट हुए हैं। 23 रनों की एक शानदार पारी खेली कैप्टन सैफ ने। सिर्फ 12 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से। 41 रनों की शानदार पारी रफी की, रिटायर्ड आउट हुए। खाता नहीं खोल पाए थे जफर। 8 रन बनाकर सलमान आउट हुए। ये 4 बल्लेबाज अभी तक पेविलियन में लौट चुके हैं। हमारे बीच में सुहास पाटिल और योगेश भैर का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक स्वागत है। निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। वेलकम। बीसीए के ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं। 6 गेंदे 11 रन। पहली गेंद घुमा दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब, और ये देखिए मिसफील्ड और गेंद 4 रनों के लिए। ये दबाव है, आगे आ गए थे, गेंद ऊपर से चली गई। फरहान खोदकर थे वहां पर, अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन उनका अनुभव इस वक्त का इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है अगले मुकाबले के लिए मापोली से। ऐसा लग रहा है कि तीसरी मापोली की टीम भी अब कठिनाइयों में। 5 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 7। जो नई टीमें आई है बहुत ही जबरदस्त खेल पेश कर रही है। इस बार फुल टॉस गेंद ड्राइव किया है फिर से फरहान के पास। इस बार अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन फिर भी 2 रन नहीं रोक पाए। दौड़ बहुत अच्छी विकेटों के बीच में। 4 गेंदों में अब 5 रन चाहिए। अजय गरत, फरहान कोतकर एक ऐसे फील्डर रहे थे अक्सर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे उसी पोजीशन में, ना उनके हाथ से गेंद छूटती थी ना कैच। अगर उनके सर के ऊपर 3 फीट भी कैच रहता था वो पकड़ते थे छलांग लगाकर। लेकिन जब से वो अनफिट हुए उनका क्रिकेट थोड़ा खत्म हो गया। 6 रन बनाकर खेल रहे शानू इद्रिस। एक बार फिर से कौन बनाती हुई गेंद, बढ़िया गेंद थी, बहुत ही शानदार गेंद, डॉट बॉल। 3 गेंदों में 5 रन। ओहो, कल भी ऐसा समीकरण आया था। बिल्कुल, मैच में वापसी होती हुई, और ये 3 गेंदें अब बता देंगी कि मैच कौन जीत रहा है। अभी भी मुकाबला बराबरी पे। शानू ने ड्राइव किया, बैकलिप को नीचा रख के लॉन्ग ऑन पे, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, और आउट हो गए बैट्समैन। ये देखिए लोअर फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया था, बहुत मुश्किल था दूसरा रन लेना। अच्छा थ्रो और बाकी का काम कल पूरा किया। ही चर्चा चल रही थी कि डेप्यूटी मेयर कप में जो मुकाबले हो रहे हैं वो काफी कट टू कट हैं। ये तो अभी इब्तिदाई मुकाबले हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। जी हाँ, अभी भी पहले राउंड के मैचेस चल रहे हैं। 2 गेंदों में 4 रन, कश्मकश गेंद और बल्ले के बीच में जद्दोजहद घमासान देखने को मिल रहा है। शॉट थर्ड में जनार्दन पाटिल, जयेश पाटिल के पिताश्री जो पुलिस पाटिल भी अब हो चुके हैं, उन्होंने डेप्यूटी मेयर कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। 2 गेंदे 4 रन। फुल टॉस गेंद, क्या गेंद मैदान के अंदर, यस, आउट। कैफ थे बाउंड्री के पास, अंदर आते हुए उन्होंने कैच लिया स्क्वायर लेग की दिशा में। फुल टॉस गेंद, मैच समाप्त कर सकते थे बैट्समैन, मिस टाइम। एक बात अजय गलत, ये जो आखिरी गेंदबाजी को आया है, इसका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है। हालांकि लूजनर गेंद थी लेकिन आउट हो गए बैट्समैन। 1 गेंद और 4 रन। 9 मरतबा, 7 मरतबा गोल्डन 6 और 1 मरतबा गोल्डन बाउंड्री। मुफस्सल के पास स्ट्राइक है आखिरी गेंद के लिए, और आखिरी गोल्डन 6 लगाया था महेंद्र मागे ने, मानो कप के सामने कर दिया था आगे। यहां पर क्या होगा? 1 गेंद 4 रन जीतने के नहीं, लिए। अब सर खुजा रहे होंगे उनके कप्तान के, वो 2 रन पेनल्टी के कितने महंगे पड़े। तो क्या वही टर्निंग पॉइंट रहेगा या फिर कुछ और? अगर 2 रन से हारे तो मानो पेनल्टी उनको ले डूबी।
4 रन चाहिए, खेला जरूर, 1 रन बना और इस मैच को जीत लिया है 2 रन से, और उन्हीं 2 रन से जो पेनल्टी के मिले थे आर्यन स्पोर्ट्स को। हार्ड लक आर्यन स्पोर्ट, हार्ड लक कैप्टन सैफ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मतीन स्पोर्ट फरहान कोतकर एंड द कैप्टन आसिफ शेख। हालांकि उस पानी ने टीम को पानी पिला दिया। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा अरकम को। 46 रनों की बहुत ही खूबसूरत बारी खेली अरकम ने। वेल प्लेड अरकम। आइए सबसे सुहास पाटिल आपको रिस्ट वॉच देंगे। बीसीए के अध्यक्ष योगेश भोईर आपको ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। उमर एचएस के कैप्टन आपको ये मिठाई देंगे। First, many congratulations, Arkham. Once more, you played a fantastic knock. In previous year, you played a fantastic knock against Dhanesh 11. What an inning, amazing inning played in this match 46. लेकिन अरकम ये बताइए, आपके 46 रनों पे आपको कब लगा कि पानी फिरने जा रहा है? जब वो 2 रन मिले हमें एक्स्ट्रा, तब लगा कि हम लोग जीत सकते हैं। गेम में आए, फिर उसके बाद अच्छी बॉलिंग की सबने और मैच जीती। क्या आपको उम्मीद थी कि आखिरी ओवर में आपके गेंदबाज आपको जिताएंगे? हाँ बिल्कुल उम्मीद थी कि मैच निकलेंगे। 10-12 रन रहे। तो जब आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, अर्धशतक से 4 रन दूर थे, तो एक ऐसा शॉट क्यों खेला जिस पर आउट हुए? क्या चाहते थे कि टीम के लिए खेलना है कि अपने आप सेंचुरी के लिए? बिल्कुल टीम के लिए खेलना चाहता था और लॉन्ग बाउंड्री थी, इसलिए शॉट नहीं गया और बैट पे सही आई भी नहीं थी। और क्या लगता है कि गेंदबाजी में जो गलतियां हुई है, मतीन स्पोर्ट्स अगले मुकाबले में सुधार के आएंगी? इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। ये आप देख सकते हैं योगेश भोईर, सुहास पाटिल, हमारे इरशाद कुरैशी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट भी है बुराक वेलफेयर के। अजय गरत, शाम बहुत रंगीन हो चुकी और क्रिकेट बहुत संगीन रहा था पिछले मैच में। शायद उनके स्पॉन्सर कहेंगे कि 2 रन का पानी पीना लगभग 2000 से महंगा पड़ गया, जिस तरह मैच गंवा दिया। महबूब गौरी भी हमारे पास है, अब उनका गम थोड़ा हल्का हुआ होगा।